इसके लिए तो मांग रहा हूँ, फायर दे दो भाई को। ले लो शॉट, ले लो पहले। I would like to thank, especially first Bablu Supriyo, Sanjeev Goenka, and Saregama Music Company for giving me this wonderful opportunity to sing. So today I'm here in front of you totally in a different group, right? So it's all because of you. This is all rehearsed. I told her कि कम से कम मेरी थोड़ी तारीफ कर दे. So thank you so much. As he said, जो इन्होंने बताया, वो सब everybody knows about it now. But what I will say is, he is a very, very tough music master. He made me sing the way he wanted. I used to get tired. I said, no, आज जाने दीजिए, बाद में करेंगे. But he will see that I have to sing the whole thing as he wanted. So that is what I did. But I was very excited singing those two Bengali songs, जिसका accent वगैरह सब correction कराया. Though I had sung long back with Kishore Da, it was a great opportunity for me, which I did not realize at that time. But today I value it so much. And अभी उसी सुर में गाने को कोशिश किया तो नहीं हुआ, तो मुझे मेरा सुर थोड़ा सा नीचे उतारना पड़ा. So which was not agreeable. No, you have to sing in that. I said I can't. Then as you grow older, I think आवाज भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है. And then I tried my best, and then I think it is quite good. That's why music company is releasing it. Otherwise, I don't think we will all be here today. And thanks to Babu for making this such a big occasion, which I never thought. I've been a dancer, actress. In various occasions, I've been in front of you all. But today, I really can't believe that as a singer, I'm in front of you, which is, I never thought of it. Just want to thank Jayaji and Rameshji. That's the surprise for us. That's really a big round of applause for Didi and Rameshji. That was a big surprise for us. शिल्पी साहब यहाँ बैठे हैं तो मुझे वो डायलॉग याद आ गया. आपने कहा कि भाई एक्टिंग भी करी, डांस भी आप कर रहे हैं, फिल्म्स भी डायरेक्ट करी, सीरियल भी डायरेक्ट किया, और खबर होता तो पूछता जरूर कौन चक्की का आटा खाते हो. क्योंकि ये सीक्रेट क्या है, कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज करती हैं, पब्लिक लाइफ भी आप मैनेज कर रही हैं, तो ये किस तरह से हो पाता है? Life is so beautiful to live. God gives so many gifts as an opportunity. Only thing, we had to open the door and grab the opportunity. That's what I did. You have to reinvent yourself. I came as a dancer, then became an actress, then wanted to make a film, produce it. Then I thought, why not I direct it? क्योंकि इतने बड़े-बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने के बाद थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाता है. So I was able to do, I think, fairly well, not bad. But somehow I could not continue that. Then, of course, singing is because we have been giving lip movement to so many songs. तो गाना गाते हैं, लेकिन ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गाना गाऊंगी माइक के सामने. जो फिल्मों में थोड़ा बहुत कुछ गाने के लिए कहा था, गुलजार साहब ने एक दो लाइन गा लिया. कल्याण जी आनंद जी के साथ भी एक दूसरा गाना गाया था. that चंद्रमुखी and उसका था. And then मैं क्या करती थी, when I do my prayer in my house in the morning, I always recite a lot of Sanskrit shlokas. बहुत loud मैं बोलती हूँ, गाती हूँ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है. मैं अपने आप में मस्त होकर मैं गाना. And that too, it is सौंदर्य लहरी करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रंथ है by आदि शंकराचार्य. उसको मैंने गाया था, घर में गाती थी. फिर मुझे मन में आया कि why not I make it as a श्लोक कर लेंगे. और I called आसिफ देसाई जी, a very big music director. तो उनके साथ मिलकर मैंने उसको, उन्होंने थोड़ा बहुत गाने के लिए कहा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं गा सकती हूँ. एक little inspiration came कि I think I can sing, because of the shlokas. It's very difficult to sing in Sanskrit, but I tried and I think I did quite okay in that. वो रिलीज हुआ,
उसके बाद मेरी मुलाकात इनसे हुई थी. हाउ द अपॉर्चुनिटी कीप्स कमिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो इनसे मिली थी तो इन्होंने कहा कि आप ये गाने के लिए कहा, तो हम लोग गए थे कलकत्ता में, जाकर उसका रिकॉर्डिंग किया. रिमेंबर 2 दिन. Remember everything. I just see. I had a very small cue. When she used to dub, na, I really used to pester her because I knew that it's dream girl singing. So there is going to be a lot of expectation. So every line needed to be perfect. And she said, "Life is beautiful, so beautiful." I mean, it's so easy for someone to say this when you are yourself so beautiful. So the song needed to be really, really beautiful. The only cue that I really followed was that whenever she says something in South Indian, she had an attendant. हाँ बाबू एक और ले लीजिए. बीच में अगर कभी उन्होंने साउथ इंडियन में कुछ बोल दिया ना वो एटेंडेंट को, तो मुझे लगता था कि अब टुडे का आज का एंड यही पे होना चाहिए. So I should take that cue. कुछ बोला उन्होंने साउथ इंडियन में दरवाजे के पास, हमने हिमा जी आज इतना रहने दीजिए, अगले दिन फिर मिलेंगे. That was only small cue. This is the first time South Indian language appeared very easy to me. I mean in terms of understanding what the cue was. बहुत कुछ सवाल जो है हमारे मीडिया के मित्र हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं. उससे पहले विक्रम साहब एक बहुत जरूरी काम है, मैं चाहता हूँ आप मुझसे निपटा लें. मतलब ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं, आप प्लीज उससे निपटा लें. और the house is open for the media in case you have questions to Hema ji and Babu sir, please. Hi, Hema ji and Babu ji over here to your left over here. Firstly, I would like to congratulate you people for coming up with such an enchanting, I would say, this album. My question is to Mr. Babu ji. Since Hema ji, she is the dream girl, and definitely she is the eternal dream girl. And यहाँ पे सिप्पी साहब भी जो है उन्होंने कहा कि जो है वो शोले जो है मूवी दोबारा नहीं बना सकते. तो was it like जैसा उन्होंने कहा शोले दोबारा मूवी नहीं बन सकती, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपका एल्बम है, सो ये हेमा जी का ड्रीम गर्ल का हैंगओवर है कि आप एल्बम बना सके हैं कि और व्हाट लाइक हाउ डिड ऑल दिस हैपन. Just keep the question as short as possible. Yeah. और हर आदमी अगर कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करे तो अच्छा है, मतलब ऑलरेडी. हाँ, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सी आप इतना कुछ सोचेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू गेट कंप्लीटली इंटिमिडेटेड बाय द फैक्ट दैट देयर इज ड्रीम गर्ल ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास. सो थिंग इज दैट व्हेन यू आर इनसाइड द स्टूडियो, I just tried to concentrate on the job in hand. I had to keep in mind that it's her. She has certain expectations from the song, so the song has to sound nice. I mean, and she's not intimidating person, or the dream girl tag or that Hema Malini tag does not come to attack you at all. She's one real present personality, and I think that made everything so very much more easy. Can you do the next question, please? This is Ravi. एक सवाल पूछना चाहूँगा. इसमें एक लाइन है बिगड़ी से लेके बाजी, ये लाइन के बारे में मतलब कुछ जानना चाहेंगे, और आपका गाना सुनने के बाद धर्म जी ने क्या कहा, उनका रिएक्शन क्या था, ये भी जानना चाहूँगा. वो रिएक्शन धर्म जी से हम लेते हैं. आप सबका रिएक्शन अभी देखेंगे ना, अभी डायरेक्ट देखेंगे. और ये गाने का पूरा आइडिया इनका है. बाबूजी ने कैसे उसको सोचा और बनाया, आई डोंट नो. ही गेव मी द लाइंस टू सिंग, आई sang. आई एम नॉट ए ग्रेट सिंगर, बड़ी ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश है. आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट. लेकिन एक कलाकार होने की वजह से सब कुछ करने की इच्छा होती है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. एक क्यूरियोसिटी बहुत रहता है. उस ढंग से मैंने गाया है. तो आई थिंक ही हैज अप्रूव्ड व्हाटएवर आई हैव सन. बट ये इज वेरी टफ मास्टर, दैट मच आई नो. ये शिकायत की तारीफ, शिकायत की तारीफ दोनों हैं. मुझे आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है, अगर बता सकते हो. ये बॉय इसको बंद करो. मेरे फेवरेट सिंगर. लता मंगेशकर जी. ये जो सर्व कर रहे हैं ना बहुत कर. Move to the next question, please. वो थोड़ा किशोर कुमार का नाम भी ले लेते, बट थोड़ा गुस्से में है कि उस वक्त उसको गाना गाया था. ऐसे उनकी मम्मी को समझा के, तो अदरवाइज किशोर कुमार भी उन्होंने बताया कि बहुत फेवरेट है. सर मेरा सवाल हेमा जी से है. आई एम अब्बास चिश्ती. गाने से पहले आप रियाज कितना टाइम करती हैं? बिल्कुल रियाज नहीं किया. ये आपने बहुत अच्छा किया. इसीलिए अगर शायद मैं रियाज करती तो इतना ठीक नहीं होता. लेकिन ये गाने के बाद, ये रिकॉर्डिंग होने के बाद, अभी मैं एक मास्टर को रखे, एक गुरुजी को बुलाया और मैं प्रैक्टिस करती हूँ. तो आगे भी आप सिंगिंग चालू रखेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जवाब देता हूँ. अगर आप लोग देखिए, सुनना चाहें ना चाहें, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को शांति मिलती है,
तो मैं ज़रूर गाऊंगी और वो परफेक्शन होने तक मैं करती रहूंगी। नहीं, सुनना भी पसंद करेंगे और आपको देखना भी पसंद आप करेंगे। मुझे बाद में मिलिए नहीं, मैं आपको सारा सवाल का जवाब one question per person, please. बाद में शो के बाद में इधर ही One question. No supplementaries, no follow. Thank you all of you. बाबू दा, एक दो लाइन हो सकती है। Okay. और हेमा जी, आप तो यहाँ पर हैं और हर बार यादें बहुत ताज़ा होती हैं जब भी आप सामने आती हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आपने पसंदीदा किरदार निभाया। सीता और गीता, एक चादर मैली सी, बहुत सारे किरदार आपने निभाए, पर एक सीन मुझे शोले फिल्म से याद आता है। बाबू दा, आपको भी शायद याद होगा कि तुम तो बड़े निशानची हो। भाई एक चीज़ आपको मैं बताऊं, एक इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं है खैर, पर इतना बड़ा एक मोमेंट वेट कर रहा है आज के दिन के लिए कि हमें और एक भी शब्द नहीं करना चाहिए, एक भी और शब्द नहीं बोलना चाहिए, साइड में जाके खड़े होते हैं और आगे आगे आप लोग देखिए होता है क्या। प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी बिग मोमेंट वेटिंग एंड आई थिंक वी शुड ऑल। और ये सरप्राइज और नहीं, I would request Mr. Vikram Mehra to please invite Bachchan Saab and Dharam ji on stage. धर्मेंद्र साहब। ये एकदम यादगार लम्हा है। आई थिंक बहुत मुश्किल से, मालूम नहीं कौन सी सूक्ष्म दशा आगे मिली है कि सब दिग्गज कलाकार एक साथ में हैं। हाँ, जय भी हैं, वीरू भी हैं, बसंती भी हैं, राधा भी हैं, सिप्पी साहब भी हैं। ये कमाल का एक कॉम्बिनेशन है। इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे हेमा जी, दो शब्द अगर आपकी तरफ से हम सुन सकें फॉर दिस स्पेशल मोमेंट। इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। मैं और क्या बताऊं, धर्म जी हैं, अमित जी हैं, जया जी, रमेश जी, बाबुल जी। तो बाबुल का ये सपना है कि शोले शोले बार बार कहते थे, तो पूरा शोले अभी आपके साथ में है। सो आई एम सो ग्लैड एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑन द डायस एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड गाना ज़रूर सुनिए, अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं मालूम, बट इट इज़ क्वाइट स्वीट एंड नाइस। आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से। Thank you, Hema ji. Also, 2 words from your side.
Well, I just had one thing in mind that, when Himaji sang a song and it was releasing, the release could be really, really exciting. So we were discussing things with Sanjeev ji, and I just felt that Amit ji and Dharam ji as Jay and Viru actually ignited the Sholay in Basanti, in the film Sholay, and made her do daring things like even fighting with Gabbar. So now that she's doing something which according to her is something that she's never done before and daring, I mean, it would be great to have the same Dharam ji and Amit ji, the Jay and Viru still supporting Basanti in her daring act. That was the small idea that I had. I shared with Sanjeev ji, and I'm really, really grateful to Bachchan Saab, Dharam ji, for agreeing to come here and spoke to Himaji. They spoke to Himaji and made this moment happen for all of us. I think it's a great, great moment for, I think, the audience of India, that this moment of Sholay got recreated in the voice of Basanti. She really fired a lot of, in Bengali they say gun, and in Bengali song is also gun. So I think it's a great coincidence, and I'm very happy that happened. That's all. Thank you. Now may I request धर्मेंद्र साहब दो शब्द अगर आप इस वक्त बोलें. आइए. इस खूबसूरत जश्न पर आए मेरा परिवार, ये कैमरास, ये जर्नलिस्ट, मैं फैमिली कहूँगा. हमारा दामन चोली का साथ है. अब दामन कौन है, चोली कौन है, हम तय करेंगे बाद में. मुझे यहाँ बुलाया कि एक अच्छा जय, वीरू को तो बंसी बजानी नहीं आती थी ना, फिर ये राधा ये बसंती गाने कैसे लगी? कहते थे ना, राम ने शाम ने बंसी बजाई, ये कैसे अचंबा हो गया. और उसके बाद वो धन्नो भी धन धन धनाने लगी. हम दोनों पकड़ के एक दूसरे को टांगे पे संभाले हुए, बैलेंस संभाले हुए, लेकिन धन्नो इसके गाने पे, इसका गाना धन्नो पे सवार, सरपट भागता भागता वहाँ रामनगर से हम दोनों को यहाँ मैरियट में ले आया आपके सामने. अब और क्या कहूँ इससे अलावा. बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत प्यारा दिन है. कहने का अंदाज तो कुछ ठीक था, शायद अच्छा लगा हो. लव यू, लव यू. May I request बच्चन साहब to say a few words आज की शाम से. जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले हेमा जी का कि उन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया. और इतने सारे लोग जो कि एक ही फिल्म से संबंधित हैं, शायद बड़े सालों के बाद ऐसा हो रहा है. हालांकि धर्म जी, हेमा जी हमारे घर के पीछे ही रहते हैं यहाँ जुहू में. यहाँ से अगर मैं चिल्लाऊँ तो धर्म जी मेरी आवाज़ सुन लेंगे, और 2 कदम चलूँ तो हेमा जी के यहाँ पहुँच जाऊँगा. लेकिन वहाँ कभी मिलना होता नहीं है. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी कि आपने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया ताकि हम सब लोग इस मंच पर आकर के मिल सकें. मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा, और आप इसी तरह. अभी जया कह रही थी कि ये हेमा जी कितना काम करती हैं, हम लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं. राजनीति में है जी, राजनीति में है, पार्लियामेंट जाती हैं, मथुरा संभालती, परफॉर्मेंस होता है इनका, गाना भी गा रही हैं. हम लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं. मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आज के बाद हम लोग भी कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करें. आपने ज़रा दिल से पूछिए अमित कितना झूठ बोल रहा है. पूरी इंडस्ट्री का इंजन बना हुआ है, सब पीछे पीछे चुक 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 करते चल रहे हैं. मैं देखता हूँ इसकी कौन सी स्पीड में कैसे कोशिश करता हूँ. लेकिन ये जवान बच्चा मेरा
बाज नहीं आता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आज पता चलता है इसने ये किया है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा। भगवान इसको बहुत लंबी उम्र दे। मेरा प्यारा प्यारा छोटा भाई है, जी जान से प्यारा है। ये जितना करेगा हम सब के लिए एक सबक बन के रह जाएगा। अब इसके बारे में, और मेरी ये प्यारी सी गुड्डी बेटी है। अभी मैं ये कहना चाहूँ कि फिल्म गुड्डी में इन्होंने मुझे बताया कि धर्म जी में आपकी फिल्में देखती थी, अनुपमा, देवर, फूल और पत्थर। तो आज भी वो लम्हा, वो बैठे हुए कुर्सी पे मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ, वो नक्श होके रह गया है। मैं अपनी गुड्डी को कभी भूल नहीं सकता। इन्होंने एक सच्चाई से जैसे मुझसे कहा, ये मेरी बच्ची है, बहन है, सब कुछ है। और इनको भी बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं। और पास में खामखा सफ़ेद मूंछ बन लगाए क्यों बैठे हैं? अच्छे खास जवान हैं बाकी लोग। मैं सुप्रिया के नाम से सुप्रिया चौधरी याद कर बैठा था, लेकिन इनका नाम बाबुल सुप्रिया है। मैं इनको भी सर, आपसे भी इतना याद रखिए, जैसे आपने बच्चन साहब के लिए कहा है ना, इन्होंने जो जितने बड़ी बड़ी कमाल की फिल्में बनाई है उसमें बाबुल भी एक फिल्म है। हाँ, बाबुल बहुत अच्छी। Couldn't resist that, sorry। नहीं यार, ये तो बाजील मार जाता हर बात में। आपको भी बहुत सी दुआएं। आपने मिलके जो ये खूबसूरत एक आरंभ किया है, इसका ये इस इब्तिदा का इंतहा तो बहुत खूबसूरत हो गया, ऐसे लगता है। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। और आप ठीक हैं? कहिए ठीक हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धर्म जी, मेरी एक तमन्ना है, आप अभी इतने अच्छे शेर व शायरी लिखते हैं, तो वो लिखेंगे और मैं गाना चाहती हूँ उसे। अमित जी भी गाएंगे। अमित जी नहीं गाएंगे तो जाने कैसे दूंगा इनको, छोटा है मुझसे। हाँ, ऐसा कुछ होगा लग रहा है। अभी ये शुरू हुआ है तो गज़लें भी होंगी और लोगों तक ये अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगी, और बिखेरना भी चाहिए। ऊपर वाला नवाजता है तो जी भर के बांटो। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमा जी। हमारे विवाह को 42 साल हो गए हैं। 42 सालों से मैं गाना ही गा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। काश ऐसी आवाज़ दी होती तो मैं 45, 46, 47, पता नहीं 100 साल तक गाता रहा। कहते हैं ना, you have to reinvent yourself. So Dharamji has reinvented that he can write so well, so beautiful he writes. So maybe you can also sing. Try it. You must. Babulji, you will do it. So make him sing. मैं इनको उसका वजन संभालते हुए मुश्किल हो जाएगी। लिखता तो दिल से हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा लिखूँ। अब मुझे उकसा दिया है, कुछ बकवा कर लूँ। मेरी उनकी राह गुज़र एक थी, मेरी उनकी राह गुज़र एक थी, सर झुकाए गुज़र जाती, चुपचाप पास थी। मंदिर जाती कोई जोगन थी, पाकीज़गी में लिपटी फरिश्ता सूरत, कोई मुक़द्दस मूरत थी। नूर का जिसके ताब न ला सकी हस्ती मेरी, इजहारे मोहब्बत गुनाह ना हो जाए, सजदा किया नक्शे पाको उनके और चुपचाप राह गुजर छोड़ दी। Now मैं रिक्वेस्ट जया जी 2 शब्द इस शाम में, इस मौके पर।
2 शब्द तो प्लीज। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। नॉर्मली लोग कहते हैं ऊपर वाला चाहे, तो मैं इस वक्त ये तो नहीं कहूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि जनता चाहे तो आपका ये एल्बम बहुत बहुत लंबा चलेगा। जब धर्म जी कुछ कह रहे थे, he is the only hero whose photograph I kept as a child. तो जब भी मुझे मौका मिलता है उनके साथ स्टेज शेयर करने का, तो मैं बहुत खुशी से आ जाती हूँ। Amazing co-artist, amazing human being, an amazing partner for Hema Malini. बयालीस साल से गा रहे हैं, नाच में रही। रमेश जी क्या कहें, आपके लिए तो कुछ कहना ही बेकार है। जो लोग काम करके दिखाते हैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आपका काम बताता है कि आप क्या हैं। और ये जो लड़का है बहुत बदमाश है, मिनिस्टर बन गया है मगर ये सब हरकतें कर रहा है। अभी आपकी नौकरी चली जाएगी। दीदी एक बार पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नौकरी गई थी, एक दूसरी बार भी चले जाए, कम से कम ड्रीम गर्ल का गाना और ये इतना बड़ा एक जो शोला जो है स्टेज पे आज शाम को दिस हैपेंड, सो आई एम हैप्पी टू गिव अवे माय नौकरी। मैं बिल्कुल यही जवाब सुनना चाहती थी कि कलाकार चाहे कहीं चला जाए, कोई और काम करे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में करे, पॉलिटिशियन बन जाए, मंत्री बन जाए, मगर उसका हमेशा एक भरोसा ये रहता है कि मुझे कला आती है। Absolutely. Thank you so much. So that is your base and that's your strength. And I just want to tell Amit ji, Dharam ji and Hema ji and our tycoon Ramesh ji, I'm missing Hari Bhai and Amjad. Absolutely. I really am. सिपी साहब 2 शब्द आज की शाम में। मेरी पहली फिल्म अंदाज की शीतल, दूसरी फिल्म की सीता और गीता और तीसरी फिल्म की बसंती। आज हम बसंती के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगेगा जब गाना सुनेंगे, देखेंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जानता हूँ इतना सारा जो आपने काम ज़िंदगी में किया है, एक और नया अंदाज और आपका देखने को मिले, सबको सुनने को मिले, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। हम बहुत बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इसको सुनने के लिए। वीरू ने उस वक्त कहा था ना कि इन कुत्तों के सामने मत नाचो, तो बसंती ने सोचा क्या करें, अभी नाचना तो नहीं दिया। बसंती नॉट हेमा मालिनी, सो गाने लग गई है। कैन वी हैव द जूल बॉक्स ऑन द स्टेज ताकि इस एल्बम को हम लॉन्च कर सके, इसको अनवेल किया जा सके। वो जूल बॉक्स आए। मैं अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र साहब से, अमिताभ बच्चन साहब से, जया जी, सिपी साहब और बाबुल सुप्रियो और हेमा जी से, कृपया इसे लॉन्च किया जाए।
so that we can have a look at the video of this album. Right. Amit ji and Dharam ji. तो मैं विक्रम मेहरा साहब से अनुरोध करूंगा कि इस यादगार लम्हे को और भी यादगार बनाने के लिए एक छोटी सी भेंट हमारे इन कलाकारों को दी जाए। तो हेमा जी, और अब धर्मेंद्र साहब को ये मोमेंटो पेश किया जाए। मेहरा साहब, ये बच्चन साहब नाम, एंड्रू अडियर, और अब इसे और भी यादगार बनाएंगे। आपने कहा बसंती का गाना है, बसंती ने गाना शुरू कर दिया, तो एक ग्रामोफोन है। मैं चाहता हूं कि आप सब एक फोटोग्राफ उस ग्रामोफोन के साथ खिंचवाएं। ये सामने हेमा जी, बिल्कुल ठीक सामने। ये आई जस्ट बैक स्टेज। हो गया काफी फोटोग्राफ्स हुआ, ठीक है। आप खिंचवाइए। You will get more opportunities here. Okay, all three of you. ग्रामोफोन के साथ सर